Assalamu alaikum everyone. Hello everyone. I'm here Dr. Afia Imtiaz. Can you hear me? Now, let me introduce you myself and first of all I can show you myself by turning on the cam. Here I am Dr. Afia Imtiaz. So let me introduce you myself. I am a graduate from the first batch of University of Health Sciences and being a physical therapist, so let me show you. I have been among those few of the physical therapists जिनके बारे में कहा गया था कि भाई जो अर्थक्वेक के रिहैबिलिटेशन वाले हैं ना, ये उनको रिहैबिलिटेट करेंगे. सो आफ्टर 2005 जब अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में और बड़ा ही स्फेयर किस्म का अर्थक्वेक था, तो उसके बाद फिर हमारी मिनिस्ट्री ने ये चीज़ देखी, हमारे मुल्क में देखा कि भाई फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की बड़ी कमी है. दैन अ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम University of Health Sciences has started a graduate program and we the physical therapists were among them. So I have been a graduate from Allama Iqbal Medical College. Afterwards I have done my TDPT from the UHS as well, and then I have done my certified in medical teaching from UHS in collaboration with University of Liverpool. After that I have done my MS in neurological physical therapy from University of Lahore, and I have been teaching since 2012 in Government College University Faisalabad. I have been the focal person of Pink Ribbon campaign at GC University Faisalabad as well. I have been grabbing this opportunity for creating this awareness session for you, breast cancer awareness session. We will be having this discussion और उसमें हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपके लिए नई हो और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए भी नई थी. When I have been scrolling all through this, तो मैंने ये देखा कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा एशियन कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, वाई इट्स बीन दैट मच कॉमन. सो देयर इज़ अ प्रेजेंटेशन विच विल बी शेयर टू यू आफ्टर दिस सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल starting this informative session, and we will be going through the contents as well, जिसमें हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, एनाटमी और कुछ डिजीज़ की ट्रीटमेंट्स एंड एज वेल एज rehabilitation facts that what we being physical therapist can do in a patient of breast cancer, and the post-op management and the pre-op management, and what a female can do for herself and as well as for the betterment of her friends, family and neighborhood as well. So let's start with it. Now, breast cancer awareness session. First of all, we all know that breast cancer awareness is the month of October. Breast cancer awareness month क्या है, कैसे है, and why the October is only? According to the World Health Organization, WHO has seen that overall the world breast cancer prevalence has been increasing day by day. तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक पूरा मंथ फिक्स किया गया. Why females are not getting aware of this? Because in every year a number of females have been a victim of this disease. The main cause, the main purpose is non-detection. होता क्या है, females are unaware of the fact, they don't realize that it's been a major problem, it can become severe. So a whole month which is October, as you can also hear on your phone lines, जब आप किसी का नंबर डायल करते हैं तो फिर आगे से आपको एक आवाज़ सुनाई देती है कि जी अक्टूबर का महीना जो है वो इस काम के लिए फ़िक्स किया गया, just to create the awareness. So the main thing, as we can see, is the early detection. After the early detection, there is a good chance that it can be cured. And I have seen many survivals जो कि इस डिज़ीज़ के बाद बच गए थे और improved थे, and they have been a longer life as well. When there is no metastasis and early detection, तो वो लोग survive कर रहे हैं. This thing is known as the palliative care.
palliative care, how the sufferings of the patients can be treated and the families can become improved. There are certain facts of this lethal disease which I need to share with all of you. What are these facts? Facts क्या हैं कि हमारे पास ज़्यादा डेथ्स जो हमें मिल रही हैं वो हैं इन low lying countries में, low lying countries among which many Asian countries and Pakistan is also there. लो टू मिडल इनकम कंट्रीज़ जिसको हम तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं. इन ममालिक में ये बात क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर सोशल सेटअप, ड्यू टू मेल नरिश्ड एरियाज़ जहाँ पे लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो छोटी मोटी बीमारी को तो जस्ट इग्नोर कर देते हैं. जब वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो सिंपली ये चीज़ एक छोटी सी प्रॉब्लम से बढ़ के एक बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है. द रीज़न इज़ दिस, द पेशेंट डिडंट कंप्लेन दैट there is no certain problem. And another main factor which is the social part. social part में क्या होता है कि social part में हमारे पास patients आएंगे, डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला, ऐसा कोई मसला था ही नहीं. and the females are quite shy in showing all these things and discussing it with their friends and their mothers and sisters as well. So that is the main purpose of this awareness session, that we have to create awareness, we have to discuss and we have to tell the persons that this thing should be reported, these things should be checked, so that why the main health services should be provided to them. Another fact we can see, it is the second leading cause of death in all cancers. That's a very 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 dangerous thing और बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है जिसमें हमें लगे कि भाई ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और फिर ऐसा कैंसर जिसमें डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है. इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए उनमें हमें डेथ नज़र आ रही है. देन अनदर प्रॉब्लम, इट इंक्रीजेज विद एज. एज द पोस्ट मीनोपॉजल एज इंक्रीजेज, यानी कि जब मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, जब एज 50+ ईयर्स हो जाती है, तो फिर उस वक्त ये एज के साथ साथ बढ़ जाता है. तो ऐसी सारी की सारी फीमेल्स रिस्क पे होती हैं. फर्दर फैक्ट्स वी कैन सी कि इट्स द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द फीमेल्स इन द वर्ल्ड. पहले ये इतना कॉमन नहीं था. सर्विकल कैंसर जो कि सर्विक्स का कैंसर है एंड यूट्राइन कैंसर वो फर्स्ट रैंकिंग्स पे आ रहे थे. उसके बाद ये कॉमन होता गया और अब पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन एशिया. इतना ज़्यादा है कि आई हैव बीन रनिंग दिस पिंक रिबन अवेयरनेस प्रोग्राम सिंस लास्ट 5 years. Earlier in 2015 the ratio was 1 in 10 women. Afterwards it became 1 in 9 women, and this year the report said that every 8th woman, यानी कि हर 8वीं औरत जो है उसको अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. This means we can see that there are a number of females who can develop breast cancer. हमारी population का 55% इस वक्त फीमेल है, तो उसमें हम देखें उस 55% में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है. Further facts we can see that almost out of all these patients 70% females जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करती, बताती ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है. लो लाइंग एरियाज़, recently I have been a discussion where a student was telling me in his area during the last few years this rate has been increased so much. लोगों को पता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है, लोगों को खाने पीने का प्रॉब्लम है. तो फिर उसके बाद वो पेशेंट्स किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करें. आज से 10 साल पहले इस डिज़ीज़ का इंसिडेंट जो है 2.3% था, मतलब इतना कॉमन नहीं था. जबकि उसके बाद अब 2.3 से ये 10% तक बढ़ गया. एंड another very devastating thing is that although the older females were affecting from this, लेकिन एक और ख़तरनाक बात हमें इसमें ये नज़र आ रही है कि भाई there are approximately 18 to 20 years aged old patient. हमारे पास ऐसे patients भी मिल रहे हैं जिनकी एज कम है. इतनी यंग सी एज में अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम वाली बात है. बिकॉज दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द एज
जब आगे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे न्यू पर्सपेक्टिव्स की तरफ जाते हैं, अपनी एजुकेशन की तरफ, अपनी फैमिली लाइफ की तरफ, और वहाँ पे आपको पता चले कि दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो दैट्स बीन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है, इतना कॉमन क्यों हो रहा है, बढ़ता ही क्यों जा रहा है? द मेन थिंग इज़ द रिस्क फैक्टर और द पैथोजेनेसिस. होगा किस तरीके से, क्या होगा? रिस्क फैक्टर इज़ एनीथिंग, any external, internal, intrinsic, extrinsic, any type of factor that will contribute in developing of this breast cancer. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस तरह से कर रही हैं? वी कैन डिवाइड देम इनटू टू टाइप्स, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. और ऐसी बात, इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि मोर देन 70% फीमेल्स हैव नो रिस्क फैक्टर्स, जिनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा. ये एक अच्छी बात है कि हमें उनमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रहा, एंड फॉर्चुनेटली दे आर सेफ फ्रॉम दिस लीथल डिजीज़. One by one we can see what are the different modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. Modifiable risk factors जिनको एक फीमेल चेंज कर सकती है, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकती है. दिस कुड बी वेट, बॉडी वेट आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो डिक्रीज़ कर सकते हैं. एंड द BMI, बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स यू कैन बी फेमिलियर विद इट. बॉडी मास इंडेक्स क्या चीज़ है कि आपकी हाइट के मुताबिक आपकी बॉडी का वेट हो. ये ना हो कि आपकी हाइट तो है 5 फुट और आपका वेट है 120 kgs. दिस मीन्स यू आर ओबीज. देन अबाउट योर डाइट, यू हैव टू क्विट फास्ट फूड्स और एटलीस्ट रिड्यूस इट. कम करते जाएं बिकॉज more fruits, more vegetables and diet rich in calcium is proved to be better for these patients. उनके लिए ये अच्छी है. Exercise. We being physical therapist always promote exercising, what to do and what to not to do. आजकल आपको पता है ट्रेंड बहुत ज़्यादा है about the workout करें, जो आपने खाया है उसको बर्न करें. Then after that time period क्या होगा कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवा देती है. एनी ऑफ दोज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी अ फैक्टर ऑफ स्टार्टिंग दिस ब्रेस्ट कैंसर. हम आगे देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से स्टार्ट होता है. देन अल्कोहल कंजम्पशन. फॉर्चुनेटली अल्कोहल कंजम्पशन इज़ वेरी लेस, ऑलमोस्ट टू नन in Pakistan, but in some other Asian countries we can see that alcohol consumption is present. Absolute alcohol consumption in which the liver is being affected can also lead to risk factors, which is a part of starting of breast cancer. Smoking again is a least risk factor for all this purpose, जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर स्मोकिंग कोई फीमेल करे, जैसे हमने देखा होगा कि गाँव में हमारे पास जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो हुक्का पीती हैं. वो कहते हैं नहीं हुक्के की तो कोई ऐसी बात नहीं है, हुक्के को तो हम पी लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. तो वहाँ पे हमने ये भी देखना है कि वो भी टोबैको है. टोबैको किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम करें, हर तरह से वो डेंजरस ही है. एंड अनदर न्यू थिंग फॉर यू, इट कुड बी एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन. You must be familiar what is estrogen. It's a female hormone which is produced by the ovaries. जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही है, बट आफ्टर दैट टाइम पीरियड जब एस्ट्रोजन खुद से प्रोड्यूस होने के बाद भी हम एक्स्ट्रा बाहर से ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, इट कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर. आगे देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोड्यूस करवा रहा है. वी विल हैविंग अ डिस्कशन ऑन इट एज वेल. And the use of oral contraceptives. Oral contraceptives are very common in all of the societies. So oral contraceptives are a major cause of this breast cancer patients, and the risk factor for this oral contraceptives क्या करेंगी? They start producing mutagens in the breast. वो mutagens जो हैं वो जाके वहाँ पे lymphatic ducts के अंदर लिम्फोमा बना देंगी. लिम्फोमा मीन्स आपने शायद पैथोलॉजी में कहीं ना कहीं इसको स्टडी किया हो. वो क्या चीज़ है? वो बेसिकली वहाँ पे डक्ट्स के अंदर कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस कराता है. एंड अनदर फैक्टर, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी.
Many females will agree with this. Stress and anxiety is the part of a female life. Females बड़ी sensitive सी होती हैं, क्या करेंगी, बड़ी जल्दी परेशान हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं. सो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो छोटी छोटी बातों से बढ़ के बड़ी बातों पे चला जाए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफ स्पैन में वो शामिल हो जाए, देन इट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ दिस रिस्क फैक्टर. अब हमने करना क्या है, हमने इन स्ट्रेसफुल और एंशियस फैक्टर से ख़ुद को बचाना है. बीइंग द फीमेल एंड ऑल्सो बीइंग द मेल्स, आपने अपनी को फीमेल्स को, आपकी मदर हैं, सिस्टर्स हैं और इन फ्यूचर वो आपकी वाइफ्स होंगी, उन सबको आपने बचाना है. आपके घर के अंदर आपकी जो भी फीमेल्स हैं उनको आपने स्ट्रेस से और इन फैक्टर से बचाना है. बिकॉज स्ट्रेस में क्या होगा, हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में रिलीज़ करती है. वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे, वो मेटाबोलाइट्स ब्रेस्ट के अंदर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. लाइक वी कैन सी दैट व्हेन एवर अ पेशेंट इज़ डिप्रेस्ड, तो हम देखते हैं कि उसके सर्वाइकल मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और पेशेंट इज स्टार्टिंग कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, अ कंटिन्यूस हेडेक, एंड देयर इज ऑल्सो रिलेशन ऑफ stomach ulcer with it. Then we can see stress and anxiety are also a part of this risk factor. Now we can discuss non-modifiable risk factors. इनमें देखते हैं क्या होता है. non-modifiable जो आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो क्या चीज़ें हो गई जनाब. non-modifiable risk factors, gender. When you are a female, you are a female. You cannot change your gender until unless one is so much desirable to be a male और वो एक सर्जिकल प्रोसेसर से सारा इसे गुजरे. So that's quite a difficult thing. So हम इसको निकाल देते हैं. And the age, you cannot change your age. आप ना अपनी एज से बड़े हो सकते हैं अपनी टाइम से पहले, ना ही अपनी एज से आप छोटे हो सकते हैं. एज को फिक्स रखना है. जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि एज विच इज़ आफ्टर 50 ईयर्स, पोस्ट 50 ईयर्स की जो एज है, जो पोस्ट मीनोपॉजल एज है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स ऑल्सो अ फैक्टर बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड बॉडी इज अंडरगोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ हार्मोनल चेंजेस. दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द ब्रेस्ट कैंसर, risk of breast cancer. And the family and personal history, that's a major factor, that's major but a non-modifiable risk factor that if a person is having, मेरी खाला को कैंसर हुआ था और फिर उसके बाद खाला की बेटी को भी हुआ था, that's been increasing the risk of breast cancer for you as well. कि उसमें आप देखेंगे कि हमारे लिए, मेरे लिए ये प्रॉब्लम बढ़ रही है. उसमें हम देखेंगे क्या है, फैमिली हिस्ट्री. अगर दादी को था तो दादी से भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है. देयर आर सर्टन जीन्स, देयर आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. एंड द पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री में क्या होगा, इफ़ देयर इज़ इनिशियली अ बेनाइन ट्यूमर विच वॉज रिमूव बाय सर्जरी, तो आपकी पर्सनल हिस्ट्री है, यू कैन नॉट चेंज इट. अर्लियर यू हैड बीन थ्रू अ सर्जरी ऑफ योर ब्रेस्ट, जिसमें कोई लंप रिमूव हुआ या एक पार्ट ऑफ ब्रेस्ट रिमूव हुआ या पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ, उसके अंदर भी हमें ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा. इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि देयर इज़ रिकरेंस ऑफ दिस ब्रेस्ट कैंसर एज वेल. इफ़ वन इज़ हैविंग breast cancer, she went through all the surgical procedures and rehabilitation procedures and followed all the protocols, but if a single metastatic cell survived, अगर एक सिंगल सेल जो कि कैंसरस सेल था वो भी बच गया, तो उस टाइम पीरियड पे भी हम ये देखेंगे कि वो सिंगल सेल आगे जाके फिर से एक नए फसाद की जड़ बन जाएगा. एंड द रेस में क्या होगा, द वाइट और द Caucasians are at more risk. We being Asians are at less risk. हमें कम रिस्क है, बट ऑन द अदर साइड हम ये देखें कि अगर ये रिस्क कम है तो फिर भी ऐसा क्यों है कि हम इसको फीमेल्स को हर साल पाकिस्तान में या एशिया में हम इसका इंक्रीजिंग इंसिडेंस देख रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज़ नॉट एन अर्ली डिटेक्शन. Then there are certain inheriting genes. We will see there are certain genes BRCA1 and BRCA2. These two genes are inherited from your mother, and also it is
transmitted through an X-linked trait. That's quite a fascinating thing, that a gene is being transmitted in a Y-linked trait and an X-linked trait as well. तो दोनों में हम देखें कि मदर से भी ये जीन्स आपके अंदर आ सकते हैं और फादर से भी आ सकते हैं. वी कैन ओनली सी दिस इन ब्रेस्ट कैंसर एज वेल. देन अनदर क्वाइट डिफरेंट फैक्टर विट इज़ बीइंग टॉलर. जो लड़कियाँ लंबी हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है. अनफॉर्चुनेटली द रीज़न इज स्टिल अननोन, बट द स्टडी सेड दैट बीइंग टॉलर इज़ another associated risk factor with them. And the benign breast conditions, there are multiple benign tissues. उन benign tissues का मेटास्टेसाइज होना या फ्यूचर में जाके उस लंप का किसी भी malignant ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाना, वो एक चीज़ है. Then there is exposure to diethylstilbestrol. Diethylstilbestrol क्या चीज़ है? It is a modified form of estrogen, sometimes in hormone replacement therapy, like we can give in the patients of osteoporosis या फिर estrogen replacement therapy. वहाँ पे हमें ये चीज़ें देनी पड़ती हैं. Exposure इस drug के साथ क्या करेगा? Sometimes breast cancer start करवा सकता है. So we can see this in another slide. There are certain genetic mutations as we have discussed. These are two genes, BRCA1 and BRCA2, the most commonly found genes. सबसे ज़्यादा हमें ये मिलेंगी. इसके बाद हमें और कुछ और छोटी genes भी हैं जो कि इतनी ज़्यादा commonly इन patients में नहीं मिलती. And then overweight after menopause. आपने देखा होगा अपनी mothers के अंदर या अपनी female relatives के अंदर, खाला, फूफो, चाची, किसी के अंदर आपने देखा होगा कि 55 ईयर 60 एज में जाके वो एकदम से मोटी हो जाती हैं. दैट इज़ अ टाइम पीरियड ओवरवेट आफ्टर मीनोपॉज. वो कहेंगी नहीं मैं थक जाती हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगती, एंड दे माइट हैव डेवलप्ड डायबिटीज़ एंड समटाइम्स हाइपरटेंशन. द फैक्ट इज़ दैट the normal regulatory cycle of a female body which has been occurring over a period of time since puberty, वो अब चेंज हो चुका है. अब जब वो चेंज हो चुका है तो उस चेंज होने की वजह से क्या हुआ, उनका बॉडी का वेट suddenly out of control हो गया. That sudden overweight will be a causative agent for breast cancer. And we have discussed that alcohol and taking hormones, उन alcohol और टेकिंग हार्मोन्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. पर्सनल फैमिली हिस्ट्री एंड एज अबव 50 ईयर्स एंड द लीस्ट फिजिकल एक्टिविटी एज वी हैव डिस्कस्ड. अगर आप सारा दिन बैठ के खाते रहेंगे और सोते रहेंगे और बिल्कुल भी बेड से पाँव नीचे नहीं उतारेंगे तो फिर यू कैन डेवलप ब्रेस्ट कैंसर. जैसे लॉकडाउन में हम देखते थे, अभी तो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं. लॉकडाउन में क्या होता था, सारा दिन खा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं. तो ये चीज़ हमने देखनी है. Now coming to the anatomy of breast, actually what happens inside the breast? Breast, as we know, it's a highly complex part of human body. Basically it's a modified gland of the skin. Modified gland of the skin में हम देखें तो then as we know there are multiple modified glands of the skin. कौन कौन से glands ऐसे हो सकते हैं? There are sebaceous glands, there are apocrine glands and holocrine glands and sweat glands and so on. Among all those glands, one gland is this mammary gland known as breast. From the birth till puberty and during pregnancy and breastfeeding, there are many changes. Breast tissue actually starts from the collarbone or the clavicle and goes towards the lower bone. Lower ribs में approximately 4th to 8th rib तक ये extend करता है, and laterally देखें तो it may goes towards armpit या एक्जिला, एंड मीडियल लाइन में ये ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम तक एक्सटेंड कर जाता है. ईच ब्रेस्ट कंटेन्स 15 to 20 सेक्शंस जिनको हम कहते हैं लोब्स, एंड ईच लोब हैज़ मेनी स्मॉल सेक्शंस इन इट नोन एज लोब्यूल्स. These lobules are the glands which produce milk in lactating mothers, in breastfeeding women, and the lobules and lobes are connected to the nipple by small tubes. And these tubes carry the milk produced in them to the nipple, which is sucked by the baby through the darker color part known as areola. We can see this in the diagram as well. We can see the muscles behind this. The muscles are basically present is the pectoralis major. Behind this whole area
and many lymph nodes. You can see a bunch of lymph nodes present there. These are gaining. आपके साथ ये स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, आप वहाँ से फिर देख लीजिए. रिब्स और मसल्स हमें नज़र आ रही हैं. ठीक है, और फिर हम उसमें देखें यहाँ से ये जो लोब्स हैं, लोब्स यहाँ से मिल्क कलेक्ट करके निप्पल से ड्रेन आउट करती हैं, जो बेबी सकल आउट कर लेता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है दैट इज़ कवर्ड विद अ फैटी टिश्यू. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास होता क्या है, लेट मी फोकस इट, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो ज़्यादा क्लियरली. अनफॉर्चुनेटली ये जो फैटी टिश्यू है इसके अंदर, और ये जो लोब्स हैं और ये जो डक्ट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई एक सेल गड़बड़ हो जाता है जो बाद में जाके ब्रेस्ट कैंसर करवा देते हैं. नाउ प्रोसेस क्या हुआ, कैंसर आखिर ब्रेस्ट में स्टार्ट किस तरह से हो रहा है. हमने ब्रेस्ट की बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया. नॉर्मल सेल्स बेसिकली हमें पता है, जैसे हम एफएससी में बायो में पढ़ते होते थे कि उनका एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, एपोप्टोसिस होगी, एपोप्टोसिस कंप्लीट होगी और माइटोसिस होती है. वो अपनी उस रूटीन को फॉलो करते हुए ग्रो करते जाते हैं. Old cells are replaced by the new ones. However, during this time period, some cells are damaged. ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग साइन या एक ख़तरे की घंटी है. ठीक है, रेड फ्लैग साइन या ख़तरे की घंटी क्या होगी, जब पुराने सेल्स ख़त्म हो गए और नए सेल्स बन रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ख़तरे की घंटी बज गई कि यहाँ पे सेल्स फिर से डेवलप हो रहे थे, और वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट के दौरान देयर इज़ अ चेंज. हमें पता है कि माइटोसिस होगा, माइटोसिस में मैच्योर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेम सेल्स, वो जो 4n है वो 2n में डिवाइड हो जाएगा. उस टाइम पीरियड पे कोई प्रॉब्लम हो गया. अब वो जो प्रॉब्लम हुआ दैट इज़ नोन एज म्यूटेशन इन द जीन्स. कि सेल को जो इंस्ट्रक्शंस आनी थी, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मेथड के थ्रू आनी थी, वहाँ पे कोई एक सिंगल जीन मिसप्लेस हो गया. उस सिंगल जीन की मिसप्लेसमेंट की वजह से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हुई, लीडिंग टू कैंसर. फर्दर जब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर उसमें क्या होगा, दो सेल्स विच आर अनकंट्रोल्ड, हम बार बार बात करें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जो ख़राब सेल होगी. जैसे घर में एक गंदा बच्चा होता है, किसी की बात नहीं सुनता जब तक उसको थप्पड़ ना लगाया जाए, और वो हर तरह की शरारत करता है. सिमिलरली ये जो शरारती सेल हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, हर कोने में घुसने की कोशिश करते हैं. तो दे ट्राई टू इन्वेड द सेल्स, अदर टिश्यूज़, अदर सेल्स को ये इन्वेड करने की कोशिश करेंगे, जो कि अल्टीमेटली लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगा. यूजुअली वी कैन सी दिस ब्रेस्ट कैंसर इन द डक्ट्स. कौन सी वाली डक्ट्स, दोज कैरी मिल्क टू द निप्पल. हम दोबारा डायग्राम पे देखते हैं. These are the ducts. मेनली इन डक्ट्स के अंदर कैंसरस सेल ग्रो होने का चांस होता है. उसको कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा. देन अगर डक्ट्स के अलावा लोब्यूल्स में आ जाए तो लोब्यूलर कार्सिनोमा. वी कैन सी दीज लोब्यूल्स हेयर, जो छोटी छोटी सी आपको लोब्यूल्स नज़र आ रही हैं, these ones. रेयर केसेस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट के ऐसे एरियाज़ में, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोमाज बन जाएं, यानी वहाँ पे जो मौजूद लिम्फेटिक डक्ट्स हैं और जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें डेवलप हो जाएगा. या फिर सार्कोमास बन जाए. बट इज द कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पे कौन सा था, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मोस्टली फैट की फॉर्म में होता है, और एक एडहेरेंस मटेरियल होता है जो ब्रेस्ट को नीचे पेक्टोरलिस मेजर के साथ अटैच करके रखता है. ये तो हो गई जनाब सारी कहानी, किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड करेगा और किस तरह से ये आगे जाएगा. वी कैन सी कि ब्रेस्ट के अंदर तो अगर ये जब तक मौजूद है हम उसको देख सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इन्वेड कर जाए
विच इज़ टेक्निकली नोन एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होगा, कहाँ कहाँ जाएगा? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ब्रेस्ट से मैक्सिमम टिश्यूज़ ड्रेन करके, मैक्सिमम लिम्फ ड्रेन करके एक्जिला में जाएंगी। 75% ऑफ द लिम्फ इज ड्रेन्ड थ्रू दोस एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। 75% यहाँ से चला गया और बाकी का 25% जो है वो स्टर्नम से जाएगा। जब 75% यहाँ से जा रहा है, उस 75% में अगर एक भी सेल विच वॉज द कैंसरस सेल उस लिम्फ के साथ मूव कर जाता है तो लिम्फ एक्जिला में जाएगा और वहाँ से फिर वो मूव करके हार्ट में जाएगा। हार्ट विल पंप द ब्लड टू द बॉडी और बॉडी में किसी भी जगह पे मेटास्टेसिस करवा सकता है। देन इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वेजन और पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे मेटास्टेसिस। इन्वेजन और मेटास्टेसिस में देखें, द मेन कल्प्रिट जो सबसे बड़ी कॉज हमें नज़र आ रही है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम उसको स्प्रेड ना करे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें मेटास्टेसिस मिले। ब्लड तो यहाँ पे डायरेक्टली आ नहीं रहा, ब्लड के थ्रू नहीं हो रहा, बट लिम्फेटिक सिस्टम इसको स्प्रेड आउट करवाएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है ब्लड। अगर किसी न किसी तरीके से ब्लड वेसल्स में आ जाए देन देयर इज़ अ रेयर चांस कि ब्लड के थ्रू ये मेटास्टेसाइज हो सके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अ कैंसर रिहेबिलिटेशन, अगर एक बंदे को हो गया है, फीमेल हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस कैंसर रिहेबिलिटेशन, देयर आर मेनी मिथ्स, देयर आर मेनी क्वेरीज। हमें इस चीज़ में बताने से मना किया जाता है, हमें उस चीज़ को शेयर करने से रोका जाता है। हमारा सोशल सेटअप इस तरह का है कि कैंसर वर्ड इट्सेल्फ ही इतना ख़तरनाक है कि अगर हम इसको देखें तो जिस बेचारे को कैंसर हो गया है वो सिर्फ ये वर्ड सुन के ही आधा मर जाएगा। जब वो ये वर्ड एक सुनेगा तो हमने अपने पेशेंट को और अपने इर्द गिर्द अपने लव्ड वंस को इस चीज़ से बचाना है। नाउ हाउ टू डील विद दोज पेशेंट्स। कैंसर 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 एक अजीब सा वर्ड है, वही एक जैसे एक मौत ही आ गई है। फिर उसमें हमें एक प्रॉब्लम ये मिलता है कि व्हेनेवर अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, फिर उस पर्सन में हमें सिर्फ ये नहीं कि वो अकेला अफेक्ट हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली, उसके बच्चे, उसका फाइनेंशियल सेटअप, उसका सोशल सेटअप, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। सो ऐसे पेशेंट के लिए मैक्सिमम फिज़िकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और वोकेशनल फंक्शनिंग हमने करनी है ताकि उसकी डिज़ीज़ भी ठीक हो सके, उसका ट्रीटमेंट भी चल सके और उसकी फैमिली में भी उसको प्रॉब्लम्स ना हो। So, the main thing is improving the quality of life. The quality of life और QOL ऐसा स्केल है जिसमें हम किसी भी पेशेंट की इंडिविजुअल परसेप्शंस अबाउट हिज ओन पोजीशन इन लाइफ, कैंसर वाला पेशेंट समझता है बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो काम ख़त्म हो गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो उस वक्त हमने देखना है कि उसकी क्या गोल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी वो ख़ुद को कितना यूज़फुल समझता है। उसे लगेगा कि मेरे बच्चों का पीछे कोई ख्याल नहीं रखेगा, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो वी हैव टू रूल आउट ऑल दोज थिंग्स, वी हैव टू मॉडिफाई द इंडिविजुअल्स परसेप्शन और हमने अपने पेशेंट को उस चीज़ से बाहर निकालना है। सो एग्जैक्टली और लोग भी टीज़ करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ पे एक बड़ा ही एक अजीब सा सोशल डायलेमा समझा जाता है कि breast cancer, because these are the female organs, तो those female organs must be having something bad with this, तो उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई कि उस फीमेल का कसूर है। इस वजह से जो पेशेंट ठीक होना भी चाहता है वो बेचारा उस फेज से बाहर नहीं निकल पाता। सो वी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। इसके गोल्स ऑफ रिहैबिलिटेशन हम देखेंगे, रिस्टोरेटिव, सपोर्टिव, पैलिएटिव और प्रिवेंटिव। रिस्टोरेटिव फेजेस क्या है? पहले हमने उस पेशेंट को उस सर्जरी के बाद रिस्टोर करना है। देन वी हैव टू सपोर्ट द पेशेंट मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली अगर पॉसिबल हो तो हमने अपने पेशेंट को सपोर्ट करना है। देन द पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट ये कि अभी जो चीज़ पेशेंट के पास मौजूद है, जितनी उसकी बॉडी, जितना उसका साइकोलॉजिकल पार्ट मौजूद है, उसको इम्प्रूव रखना है, जो कि हमारा फिजिकल थेरेपिस्ट का एक मेन रोल है। फिजिकल थेरेपिस्ट का मेन रोल क्या है कि अगर एक डिज़ीज़ हो गई है हम उसको बिल्कुल करेक्ट तो नहीं कर सकते, हाँ जो प्रिजर्व्ड है, जो भी हमारे पास मौजूद है उसको हम बचा सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। एंड
डेफिनेटली प्रिवेंटिव, कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ऐसा ना हो। जैसे हमने देखा कि रिकरेंस ना हो, रिकरेंस मैक्सिमम बचाने वाली चीज़ है। डिफरेंट केसेस ऐसे देखे हमने लाइफ में, ऐसी चीज़ें देखी कि पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा था, सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट रिमूव हुआ विच इज़ नोन एज मेस्टेक्टमी, उसके रिमूवल के बाद द पेशेंट सर्वाइव फॉर 15 years एंड सडनली दैट पर्टिकुलर कल्प्रिट सेल, वो जो एक छुपा हुआ सेल था, कहीं रह गया, कहीं से निकल के आया और उसने फिर से उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया एंड द पेशेंट डाइड। सो हमें इस चीज़ में इसकी प्रिवेंशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देन सक्सेसफुल आउटकम्स डेफिनेटली किस बात पे डिपेंड करिए, द टाइमली रिकग्निशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें उसकी टाइमली रिकग्निशन करनी है। सबसे पहले पता चले कि हमारा जो पेशेंट है वो अर्ली डिटेक्ट करे। इफ़ अ फीमेल इज़ हैविंग any type of unusual change in the breast after 20 years of age, a female should have a regular inspection of her breast once in a month. हर महीने में एक दफ़ा अपने breast examine करें, regular करें। Regular examine if there is any type of unusual. Any type of unusual means हम उसको classify करेंगे if there is change in color of skin, texture of skin, if you feel any type of unusual lump, कोई गिल्टी महसूस हो, किसी किस्म का पेन महसूस हो स्किन में, ब्रेस्ट के अंदर, निपल के अंदर, देन इमीडिएटली रिपोर्टेड। इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिग सिटी तो फिर वहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि उस बिग सिटी के अंदर आपके पास, बड़े शहरों में आम तौर पे अर्ली डिटेक्शन के लिए मेमोग्राम्स मौजूद है। मेमोग्राम क्या चीज़ है बच्चों? उसमें होगा, मेमोग्राम इज़ बेसिकली द एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट का क्या मतलब? एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट जिसमें ब्रेस्ट के अंदर ये जो भी हमने देखी डक्ट्स, लोब्स एंड लोब्यूल्स, उसमें वो डिटेक्ट करके बताएगा। और ये ज़्यादा प्रिसाइज एक्सरे, जैसे आप बोन्स का एक्सरे देखते हैं ना, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर प्रिसाइज। उस तरह से ये चेक करके बताएगा कि किस तरीके से कोई एक सिंगल सेल तो मौजूद नहीं है। ये अर्ली डिटेक्शन है। एंड देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे देर वर यंग फीमेल्स, आई हैव बीन, मेरी एक पेशेंट थी 22 years एज थी उसकी, एंड देर वॉज एन अनयूजुअल लम्प। तो अनयूजुअल लम्प रिमूव हो गया, उसके बाद में शादी हो गई, शी इज़ फाइन नाउ, कोई मसला नहीं हुआ, शी इज़ हैविंग चिल्ड्रन एंड शी ब्रेस्ट फेड दम, तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात घूम फिर के आती है, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली टाइमिंग, पहले ही उसका पता चल जाए। नाउ एम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, रिस्टोरेटिव केयर के, जो हमारा पेशेंट है अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए। नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने के लिए हमारा फिजिकल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि जब आपका पेशेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद आपके पास आएगा, द पेशेंट विल बी हैविंग many type of muscular spasm, he might be having contractures, और अगर रेडिएशन थेरेपी के पेशेंट को हम देखें तो उसकी स्किन भी चेंज हो जाती है, कलर उसका ड्राई स्केली स्किन है, ट्रॉफिक चेंजेस आपको देखने में मिलेंगी, पेशेंट ऐसा लगेगा जैसे जला हुआ है, इस तरह की स्किन रहेगी, डार्क ब्लैक ग्रेइश कलर की। फिर उसमें हम फर्दर देखेंगे सपोर्टिव केयर, कि ऐसे जो परमानेंट डेफिसिट्स है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेस्टेक्टमी, जिसमें ब्रेस्ट पूरे का पूरा रिमूव कर दिया। तो फीमेल ये समझती है कि शायद उसकी एक तरह से उसकी जो फीमेल फिज़ीक है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम कहेंगे कि उसकी फ़ीमेल बॉडी ख़राब होगी। तो हमने उनको ये समझाना है कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट होगी तो आप उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करा सकते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। एंड वी नो, हमारे पास एंजेलिना जोली की एक एग्जांपल है। एंजेलिना जोली ने इसी तरह रूटीन में अपनी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवाई, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवाई, तो फिर उस वक्त उसने देखा कि उसके पास उसकी BRCA2 जीन्स मौजूद थी। शी हैड ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी एंड बायलेटरल मेस्टेक्टमी, दोनों ब्रेस्ट रिमूव कराए, एंड देन शी हैड अ ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये सारा कुछ करा सकती, वाई नॉट अदर फीमेल्स एज वेल। आपकी लाइफ पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जिंदा रहेंगे तो कुछ और कर सकेंगे। एंड देन पैलिएटिव ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं, उनमें हमने पेन रिड्यूस करवानी है, उनमें हमने उनका वर्कआउट
कम करवाना है, उनकी जो लाइफ जो रह गई है उसको हमने ईजी करवाना है। एंड द प्रिवेंटिव, ऑब्वियसली देयर इज़ प्री ऑप एजुकेशन और उसकी स्ट्रेंथ मेंटेनेंस, जैसे हम नॉर्मली रेंज ऑफ मोशंस करवाते हैं और हमने उसके अपने पेशेंट के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करानी है। मेनली शोल्डर इज़ अफेक्टेड, पोस्ट ऑप पेशेंट्स में हमें फ्रोजन शोल्डर मिलता है। वी विल सी एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, उसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उनको इससे बचाना है। सम मिथ्स एंड रियलिटीज़, हमें ये लगता है कि जैसे कुछ फीमेल्स जो हैं उनमें लिम्फ एडिमा आफ्टर दिस ब्रेस्ट सर्जरी नहीं बनेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। वेन एवर द ब्रेस्ट और अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट इज रिमूव्ड, मेनी ऑफ दोज लिम्फ नोड्स विच आर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड। जब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स रिमूव कर देंगे तो ब्रेस्ट से और बाकी के चेस्ट से लिम्फ वापस कैसे जाएगा? सो देयर विल बी स्टार्टिंग लिम्फ एडिमा। जो लिम्फ एडिमा डेवलप होगा उसके लिए अब लिम्फ डक्ट्स तो मौजूद नहीं है, सो वन हैव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस ताकि जो लिम्फ उधर एक्यूमुलेट हो रहा है वो वापस जा सके। फिर एक ये मिथ्स बहुत बड़ी है कि अगर एक्सरसाइज कराएंगे तो कहीं ये एडिमा बढ़ ना जाए। आपके पास पेशेंट आते होंगे, आप देखते होंगे नहीं डॉक्टर साहब अगर ये चीज़ इंक्रीज़ कर जाए, अगर मैं वर्जिश करूँगा कहीं मेरी सोजन बढ़ ना जाए, कहीं मेरी दर्द बढ़ ना जाए। तो दिस मिथ शुड बी क्लियर्ड। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, वो एडिमा रिड्यूस होगा, कम होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या करेंगे, किस किस तरह से हम लेके चलेंगे। वी आर फेमिलियर दैट मल्टीपल कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी प्रोग्राम्स आर देयर। आफ्टर दैट टाइम पीरियड पेशेंट इज़ फटीग्ड, पेशेंट थक जाएगा। पेशेंट may develop different type of myopathies including contractures and frozen shoulder, neuropathies and plexopathies. Neuropathies and plexopathies का मतलब because we know cervical and brachial plexus are present in this region of neck, क्योंकि यहाँ से ये बड़ी easily spread करता है, so there is a chance that the patient might be having some type of nerve problem and plexus problem from cervical plexus and brachial plexus. And obviously pain the main factor. इमोबिलिटी, नेचुरली सर्जरी हुई है, पेशेंट अपना वो वाला साइड का आर्म मूव नहीं करेगा और जब नहीं मूव करेगा इट विल लीड टू स्टार्ट डेवलपिंग एडिशंस इन दिस एरिया। एंड डिप्रेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है पेशेंट ठीक भी होना चाह रहा हो ना, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जब वो डिप्रेशन में चला जाएगा तो फिर हमें उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेडिएशंस में हम क्या करेंगे, जो पोस्ट रेडिएशंस में हमने जैसे भी बात की कि पेशेंट की स्किन ऐसी होगी जैसे जली हुई है, डार्क ग्रेइश ब्लैक कलर की स्किन हो जाएगी, पर्टिकुलरली वो वाला एरिया जहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। डिफरेंट टाइप की मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं स्पेशलाइज्ड, जो कि उस वक्त जो रेडियोथेरेपिस्ट उसको थेरेपी दे रहा है वो प्रिस्क्राइब करेगा। पेशेंट कैन यूज स्प्लिंट्स एंड ऑर्थोटिक्स एंड सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो अफेक्टेड मसल्स हैं उनके लिए हम सर्टन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फटीग हो गई, पेशेंट बेचारा थक गया, बट वी हैव टू डू विद द पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बेड रेस्ट द बेस्ट वन। देन आफ्टर टेकिंग बेड रेस्ट हम उसको सर्टन एरोबिक एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। देन एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स के उसने जो काम करना है उसमें अपनी एनर्जी को मैक्सिमली कंज्यूम करने से रोक ले, कम एनर्जी यूज़ करे, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम output. Then exercise program is completed given to them and some diversional activities. Diversional activities, if the patient was right-handed and the right side breast is affected, फिर हमने उसको बताना है कि आप अपने कुछ काम लेफ्ट से भी कर सकते हैं। And ask the patient to change her rest and sleep patterns. वो हमने इसको देखने। and the stress management and particularly the nutritional management. The one important thing about those patient is ask the patient to take more protein, calcium as well as certain vitamins including vitamin B complex and folic acid. ये उस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर वो न्यूट्रिशनली मैनेजमेंट में हम देखें। एंड मायोपैथी, अब ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, पेशेंट एक्सरसाइज करने से भी घबराएगा, तो हमने उसके लिए डिफरेंट एडेप्टिव इक्विपमेंट्स डिज़ाइन कर लेने हैं और उसको एक्सरसाइज करवानी है। And the pain as well, particularly अगर न्यूरोपैथी हो गई है, pain should be controlled by using a different type of braces and adaptive devices. And physical modalities, as we know, ज़्यादा effective होंगी। हम TENS यूज़ कर सकते हैं which is the safest, EMS यूज़ कर सकते हैं
और हीटिंग मोडालिटीज़, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव इज़ सिंपल हॉट पैक। सिंपल हॉट पैक लेंगे तो पेशेंट को हीट देने से पेन रिड्यूस होगी, लेकिन हमने देखना है कि वहाँ पे उसका मेटास्टेसिस बढ़ ना जाए, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोवाइड नहीं करनी। अब एक एविडेंस आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि डज टेंस रिलीव्स कैंसरस पेन। तो 2008 की 2009 की स्टडी है जो ये बताती है कि एक कॉकरेन रिव्यू हमने देखा कि एक मिसकंसेप्शन थी कि टेंस अगर हम कैंसरस पेशेंट में दें देयर इज़ अ चांस वो टेंस उसको इंक्रीज़ ना कर दे। RCTs वर कंडक्टिंग तो देखा कि टेंस इज़ quite helpful in improving the pain of cancerous patient, particularly in adults. I think it will be helpful for you. Breast cancer surgery, अब हम सर्जरी देखते हैं कौन कौन सी होती। मेनली 2 टाइप्स के सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। वन इज़ ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट को कंजर्व किया जाता है, बचा लिया जाता है, पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं होता। TENS stands for transcutaneous electrical nerve stimulator. This is a modality used for relieving pain in different diseases and problems. Then breast conserving surgery में हम देखें जो उसमें लम्पेक्टमी यानी वो लम्प जो ब्रेस्ट के अंदर मौजूद था उसको रिमूव कर लिया। क्वाड्रेक्टमी 1/4 of this breast is removed, and segmental mastectomy 1 segment is removed. Partial mastectomy partially एक पार्ट ऑफ ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। उसमें हमें देखा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट हैज़ टू बी रिमूव। जो ट्यूमरस पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली उससे 1 इंच इर्द गिर्द का एरिया वो रिमूव करना है। देन mastectomy means when entire breast is removed, the whole mastectomy is done. Sometimes there is bilateral या double mastectomy, दोनों साइड से ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ सकता है। Now the post surgical management for these patients, मोस्टली हमें ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके अंदर हमें देखना है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम कैसे रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। डिफरेंट वैंड एक्सरसाइजेज, वैंड इज़ अ स्टिक, हम एक लॉन्ग स्टिक पेशेंट को दोनों हैंड्स में पकड़ाएंगे और बायलैटरल एक्टिविटीज़ उसके साथ कराएंगे। एल्बो विंगिंग, जैसे स्कूल में आप पीटी करते होते थे, छोटे बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं उस तरह से। शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच, यानी कि जो हमारे पोस्टीरियरली रोम्बॉइड्स मसल हैं उन रोम्बॉइड्स मसल के स्ट्रेच देंगे। स्कैपुली स्ट्रेच करवाएंगे। शोल्डर ब्लेड स्क्वीज़, रोम्बॉइड्स का स्क्वीज़ कराएंगे। साइड बेंडिंग विच इज़ लेटरल बेंडिंग, चेस्ट वॉल स्ट्रेच, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर का स्ट्रेचिंग, एंड द शोल्डर कंप्लीट स्ट्रेच एज वेल। हेयर वी कैन सी डिफरेंट पिक्चर्स। इस तरीके से हम अपने पेशेंट को मॉडिफाएबल एक्सरसाइजेस देते हैं एट अ मिनिमम स्पीड। यहाँ पे हमने ये देखना है, डोंट गो एग्रेसिव विद द पेशेंट, डोंट गो फॉर एग्रेसिव थेरेपी, बिकॉज द पोस्ट ऑफ पेशेंट है अनलाइक अदर पोस्ट ऑफ पेशेंट्स। हमें ये देखना है कि हमारे इस पेशेंट के साथ एक एडिशनल फैक्टर था। वो एडिशनल फैक्टर क्या था? दैट एडिशनल फैक्टर इज़ मेनली फोकसिंग अबाउट द मेटास्टेसिस। ये भी देखना है। हमें तो नहीं पता ना, कि किसी को भी नहीं बल्कि पता कि मेटास्टेसिस हो सकता है, तो हमने उसको भी प्रिजर्व करवाना है। देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट्स अ ड्रैगन बोट रेसिंग। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोज़ में, न्यूज़ में, टीवी में, that this type of racing is performed. This dragon boat racing were earlier done in China. वहाँ पे क्या किया उन्होंने जनाब, एक प्रैक्टिसिंग सेशन करवाया। ऐसी फीमेल्स जो कि पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट में थी उनको उन्होंने बिठाया, 7 फीमेल्स एक साइड पे और 7 वुमेन दूसरी साइड पे, और जो अफेक्टेड साइड थी वहाँ पे उन्होंने उनको वो चप्पू पकड़ा दिए, चलें जी अब आप बोट चलाएं। ये वो फीमेल्स थी जिनमें आर्म में लिम्फेडिमा था, और 8 वीक्स तक ये काम उनसे कराया। दैट वाज अ 15 to 20 मिनट सेशन। साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराई और साथ साथ उनकी एरोबिक ट्रेनिंग कराई। तो दैट वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग दैट दोज फीमेल्स reduced their lymphedema and had increased muscle strengthening. सो ड्रैगन बोट रेसिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि एक्टिविटी भी है और साथ ही साथ हमारा पेशेंट इम्प्रूव भी करता है। देन सर्टन एक्सरसाइजेस, एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन वी कैन सी, शोल्डर एबडक्शन एडक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन। तो हम वो सारी एक्सरसाइजेस उसको करवाते रहें। एंड वी नो, being physical therapist, we have to go with mild to moderate therapy
तो एटलीस्ट 10 repetitions, not more than 10 repetitions for each exercise. पोल वॉकिंग ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग. पोल वॉकिंग जैसे अब कभी कभी छोटे होते खेलते भी होते थे, अभी भी करते हैं, स्टिक लेके उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं. तो इसी तरह से स्टिक लेके उसके इर्द गिर्द इन पेशेंट्स को घूमने का कहें और उस पोल के साथ चलने का कहें. दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल in removing the lymphedema of those patients. Again, the recommendation is for that कि when heavy exercises are being started, normally तो हम नहीं करेंगे, लेकिन when you are seeing that your patient is being improved after 6 months, तो do a regular follow up. जब अपनी रूटीन की तरफ वापस आ जाए तो हमें उसका प्रोग्नोसिस चेक करते रहना है, फॉलो अप देखना है. 1 to 2 months तक आप उसका रेगुलर फॉलो अप देखेंगे तो फिर हम उसको इम्प्रूव करते जाएंगे. एंड लिम्फेडिमा, अगेन लिम्फेडिमा के लिए हमारे पास जो बेटर मैनेजमेंट है अर्ली पोस्ट ऑप पेशेंट में, दैट इज़ एलिवेशन, जो कि हम देखते हैं हम अपने डिफरेंट थेरेप्यूटिक मैनूवर्स में. अब उस अफेक्टेड पार्ट को एलिवेट करा दें, एक्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशन गारमेंट्स आर अवेलेबल. इफ़ नीडेड देन मैनुअल लिम्फ ड्रेनेज, लाइक यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर. दिस इज़ द मैनुअल लिम्फेडिमा ट्रीटमेंट कि हमने उसको पुश बैक करना है. But another question is there that risk of mobilizing tumor cell भी कहीं वहाँ से साथ साथ एडिमा के साथ मूव ना कर जाए. These are some rehabilitation and orthotics devices कि some splints are used to maintain the posture so that हमने देखा कि अगर एक साइड का ब्रेस्ट नहीं है, पेशेंट अपनी वो साइड यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर we have to look upon that the posture may not get damaged, स्पाइन ख़राब ना हो जाए. देयर इज़ अ चांस ऑफ डेवलपिंग स्कोलियोसिस इन दिस पेशेंट. तो हमें वहाँ पे ऑर्थोटिक्स डिवाइसेस यूज़ करनी है ताकि उनका नॉर्मल फंक्शन मेंटेन रहे. नाउ टेक होम मैसेज इज़ दैट द हस्बैंड्स, सन्स, ब्रदर्स एंड फादर्स, दे शुड सपोर्ट देयर वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स. जो मेल्स हैं उनको इस सारी सिचुएशन में अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, या रादर कि आप उनको एक कोने में छोड़ दें और वो रो रही हों, उनको सपोर्ट करना चाहिए. द समरी, एज वी नो दैट देयर इज़ वेरी मॉर्बिडिटी या रिस्क फैक्टर या डेथ रेट बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर हम बीइंग फिज़िकल थेरेपिस्ट इसको देखें तो इफ़ फिज़िकल थेरेपी इज़ इंक्रीजिंग देयर फंक्शनल लाइफ, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग देम, then we can see that physical therapy is improving the patient and decreasing the barriers to their routine life, and rehabilitation of breast cancer is quite easy and quite simplified. So physical therapists around the globe have a responsibility to incorporate the literature into practice to assist women with breast cancer to move from surviving to thriving. हम फिज़िकल थेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं? जो हमने सीखा, जो हमने समझा, जो हमने प्रैक्टिस किया, उसको हम लिखें भी, सबको फैलाएं भी, उन तक इन्फॉर्मेशन भी कन्वे करें, ताकि वो लोग जो इस डिज़ीज़ से परेशान हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्प्रूवमेंट आ जाए. सो लास्टली, द मॉडर्न थिंग इज़ नॉट दैट हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन योर लाइफ, बट how much life in your years. We have to improve the life of the patients. Thank you everyone. Now you can ask your questions. Here is the end of your slides. You can ask the questions from me. जी please, any questions? ब्रेस्ट पेन में नॉट बी ड्यू टू ट्रिगर पॉइंट्स, बिकॉज ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पोस्टरल मसल्स में होते हैं. तो पोस्टरल मसल्स बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट में पेन जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से नहीं हो सकती.
You're welcome, everyone. If people feel shy for that, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उस पेशेंट को अवेयर करना है कि हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी हैं. वी आर फॉर्चुनेट दैट देयर आर मेनी फीमेल ब्रेस्ट सर्जन्स नाउअडेज एंड फीमेल फिजिशियंस नाउअडेज. और जो मेमोग्राम करती हैं वो भी फीमेल ही होती हैं. वार्म अप एक्सरसाइजेज इस तरह से हैं कि व्हेन एवर यू आर प्रिस्क्राइबिंग योर पेशेंट अबाउट दिस एक्सरसाइज, गिव हर अ डीप ब्रीथ. आप उसको 5 to 10 डीप ब्रेथ्स दें. डीप ब्रेथ्स के बाद आप उनको इम्प्रूव करते जाएंगे. जब डीप ब्रेथ्स होगी तो देन 2 to 3 रेपिटेशंस में मसल उसका वार्म अप हो जाएगा. वी डोंट हैव टू गो फॉर एन एग्रेसिव थेरेपी, इसलिए हमें उसको थोड़ी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी. Sorry, Sabiha, symptoms for what you are asking? Thank you, Sama. Yes, that's also a question which arises, that breast cancer only occur in females. There is a very rare chance that breast cancer may occur in males. Otherwise, it is a common disease of females as well. Males को भी ध्यान रखना चाहिए. Glandular cells are also present in their body and the female hormones are also present in their body in a very little amount. Males में भी बहुत rarely हो सकता है. It's like 1 in a million chance, rather 1 in a billion chance. You're welcome, everyone. Rimsha, can you please repeat your question? Self-examination is like this. Open up your one arm. I will share those pictures with you as well. Open up your one arm. Make overhead उसको abduct कर लें. Overhead abduct करेंगे. Then press it from all 4 sides and rotate and move your hand all around the breast and also press your hand in axilla as well. Breast के चारों तरफ hand move करें, palpate करें और प्रेस करें. फिर देखें आपको कोई अनयूजुअल चीज़, कोई स्किन का कलर, कोई ड्राइनेस, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, एबनॉर्मल लंप, कोई रेडनेस, किसी किस्म की स्वेलिंग, कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है, या आपको एक्जिला के अंदर लिम्फ नोड से हट के या बोन से हट के कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, फिर आप उसको देख सकते हैं. You're welcome. The reason of pain in axillary lymph nodes is that there is cancerous cells. वो जो कैंसरस सेल हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करें. जब वो रैपिडली ग्रो करते जा रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या होगी, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे. जब बॉडी की ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते जाएंगे इट विल लीड टू पेन. थैंक यू रदा. बेनाइन ट्यूमर मेडिसिन से रिमूव नहीं किया जा सकता, हमें उसको सर्जिकली एक्साइज ही करना पड़ेगा. इधर इट्स फिब्रोएडेनोमा या किसी भी और किस्म का बेनाइन ट्यूमर हो मानूर, हमें उसको सर्जिकली ही एक्साइज करना पड़ेगा. थैंक यू कासिम.
ब्रेस्ट कैंसर के एज सच सिम्टम्स नहीं होते, हमें सिर्फ स्किन के अंदर और ब्रेस्ट के अंदर कोई अनयूजुअल चेंज नज़र आएगा. इफ़ देर इज़, यू कैन सी सम different types of discharge from the nipple, any type of liquid discharge, any type of whitish discharge, any type of pus, वो इसके symptoms हो सकते हैं. फाइब्रोएडिनोमा के चांसेस बहुत कम होते हैं. मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया, वो फीमेल, उनका फाइब्रोएडिनोमा था जो 22 ईयर्स की एज में उसको डिस्कवर हुआ और शी इज़ हैप्पीली मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रन. उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था. इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कितनी देर लगेगी इसको डेवलप होने में, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मेटास्टेसिस हो रहा है, म्यूटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इट कैन डेवलप इन 2 to 4 months. अगर वो बेनाइन था और बेनाइन से वो मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हुआ है तो इट मे टेक्स अप टू 5 years. तो देर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टाइम कि कितनी देर में डेवलप होगा. दैट्स वाई इसीलिए कहा जाता है कि मंथली आप अपना एक सेल्फ एग्जामिनेशन करें. थैंक यू तारिक. I hope the queries have been cleared. Thank you all of you for your support. It becomes life-threatening in the 3rd stage of cancer. As we know that there are 4 stages of cancer. अगर ये first stage में detect हो जाए, that it's quite easily removed, surgically excise हो जाता है, patient improve कर जाएगा. अगर ये ना हो सके फिर उसके बाद stage 2 में आ जाएगा. ये stages उसकी आप cancerous stages आप pathology में देख सकते हैं. फिर स्टेज 3 में जाके, क्योंकि उस वक्त मेटास्टेसिस हो जाता है ना, इट कैन इन्फिल्ट्रेट टू द लिवर, जो कि आपको पता है ब्रेस्ट के नीचे ही एब्डोमेन में मौजूद है. फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा वाया एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इनटू द सर्विकल रीजन. फिर वहाँ पे ये काम ख़राब हो सकता है. थैंक्स कोमल. Thank you, Rimsha. Thanks everyone for your kind support and your time for sharing with me. Thank you everyone for this session. Thank you everyone. हाँ जी, निपल से आपने बात की कि जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है उसकी ये रीज़न है कि कैंसरस सेल्स, उसकी एक चांस हो सकता है, अदरवाइज देयर कुड बी एन इन्फ्लेमेशन, तो वो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह एवरीवन. I will share this presentation with you afterwards. Thank you so much बच्चों. Thank you जी. अल्लाह हाफ़िज़.